वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वो पता नहीं, मेरा जूम मैं खुल ही नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म। वो पता नहीं, वो काफी टाइम लग गया इसी चक्कर में। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हम्म। हम्म। 3.9.20। ओके। मैं पढ़ता हूँ, ठीक। जी। यो विद्यानुपहतो हि दशार्थ वृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृत लोक यात्र अंतर्जले हि कशि पुष्प शानुकूलाम भीमोर्मि मालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। जी। यो विद्यानुपहतोऽपि दशार्थ वृत्त्या निद्रां निद्रामुहा लोक यात्रा लोक यात्र अंतर्जले हिक अंतर्जले हि कशि पुष्पाशु स्पर्शानुका नुपुलान् विमोर्मिमालिन्यनस्य सुखं विमूढ विमालिन जनस्य सुखम विवृण्वन। My lord, you accept the pleasure of sleeping in water of devastation, where there are violent waves, and you enjoy pleasure on the bed of snakes, showing the happiness of your deep sleep, showing the happiness of your sleep to intelligent persons. At that time, all the universal planets are stationed within your abdomen. Hmm. Hmm. Persons who cannot think of anything beyond the limit of their own power are like frogs in a well who cannot imagine the length and breadth of the great Pacific Ocean. Such people take it as legendary when they hear that the Supreme Lord is lying on his bed within the great ocean of the universe. They are surprised that one can lie down within the water and sleep very happily, but a little intelligence can mitigate this foolish astonishment. There are many living entities within the bed of ocean who also enjoy the material bodily activities of eating, sleeping, defending, and mating. If all insignificant living entities can enjoy life within water, why can't the Supreme Lord, who is all powerful, sleep on the cool body of a serpent and enjoy in the turmoil of violent ocean waves? The distinction of Lord is that his activities are all transcendental and he is able to do anything and everything without being deterred by the limitation of time and space. He can enjoy his transcendental happiness regardless of material considerations. हम्म। ये बार बार ये आता है, ये फ्रॉग इन ए वेल मेंटेलिटी, है ना। ये काफी कई बार उन्होंने, प्रभुपाद ने ये वाला सिमली दी है, फ्रॉग इन ए वेल मेंटेलिटी। क्योंकि जीजा जी हम लोग जो है वो हम लोगों की रेंज बस सेंसेस है ना, इसलिए। हाँ हाँ, यू गॉट इट, यस। यस। हम्म। यू गॉट इट। अब यही बात है ना, वो स्केप्टिक्स जो हैं, जो फ्रॉग इन मेंटेलिटी, वही जो तुमने पढ़ा है, अब वो नहीं है समझ सकते कि भगवान के पेट में सारे यूनिवर्सेस समा गए हैं। हम्म। उनके नहीं समझ में आया कि मुंह में ब्राह्मण है, आर्म्स में क्षत्रिय हैं, लाइक दैट, हम्म। सारे के सारे लोग समा जाते हैं जाके, ये सब नहीं समझ में आता उनके।
यन्नाभिपद्म भवनादः मासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लिने क्षणाय। यन्नाभि पद्म भावना दह मास समीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै समस्त उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान विकसन्न लिने क्षीणाय। O object of my worship, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your mercy. All these planets of universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. Now your sleep has ended. Your eyes are open like blossoming lotuses in the morning. Purport. Brahma is teaching us the beginning of Archana regulations from morning 4 o'clock to night. Early in the morning, devotee has to rise from his bed and pray to the Lord. And there are other regulative principles for offering Mangal Arti early in the morning. Foolish non-devotees, not understanding the importance of Archana, criticize the regulative principles, but they have no eye to see that the Lord also sleeps by his own will. The impersonal conception of Supreme is so detrimental to the path of devotional service that it is very difficult to associate with the stubborn non-devotees who always thinks in terms of material conception. यही जो तुम बात कह रही हो, है ना? Impersonalists always think backwards. They think that because there is form in matter, spirit should be formless. Acha, because in matter there is sleep, in spirit there cannot be sleep. And because the sleeping of deity is accepted in Archana worship, the Archana is Maya. All these thoughts are basically material. To think either positively or negatively is still thinking materially. Knowledge accepted from the superior source of the Vedas is standard. Here in these verses of Srimad Bhagavatam, we find that Archana is recommended. Before Brahma took up the task of creation, he found the Lord sleeping on the serpent bed in the waves of the water of devastation. Therefore, sleeping exists in the internal potency of the Lord. And this is not denied by prime devotees of the Lord like Brahma and his disciplic succession. It is clearly said here that the Lord sleeps happily within the violent waves of water, manifesting thereby that he is able to do anything and everything by his transcendental will and will not be hampered by any circumstances. The Mayavadi cannot think beyond this material experience, and thus he denies the Lord's ability to sleep within the water. His mistake is that he compares the Lord to himself, and that comparison is also a material thought. The whole philosophy of Mayavadi school, based on not this, not this, that, neti neti, is basically material. Such thought cannot give one the chance to know the Supreme Personality of Godhead as he is. जिया जी, इसमें जो ये लिखा है ना कि it is clearly said that the Lord slept very happily within the violent waves of the water, manifesting thereby that he is able to do anything and everything by his transcendental will not be hampered by any circumstances. ये सेंटेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. अच्छा, वो कैसे? ये जी इसमें ये दिखा रहे हैं ना कि
जैसे मान लीजिए हम लोगों को अगर कोई मेंटल टेंशन होती है तो क्या हम लोग सो पाते हैं? नहीं सो पाते हैं। उसी में हम लोग हाँ हम लोग उलझे रहते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो गॉड है वो इतने ज्यादा, मतलब एक प्रॉपर्टी उनकी बता रहे हैं हाँ कि हाँ 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 हाँ, यू गॉट इट, यस। हाँ, very happily within the violent waves of the water, manifesting thereby that उनको he will कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या नाम है, ओके। हाँ, हमारे और उनमें फर्क बता रहे हैं। जी। जी अब मुझे एक चीज और लग रही है कि जो हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, हम लोग श्रीमद् भागवतम में, उसमें बार बार इस बात पे इम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो भगवान है उनकी अलग मतलब उनका अलग एक दिव्य स्थान है, उनकी अलग दिव्य क्षमताएं हैं। ये हम लोग को इसलिए बार बार बताया जा रहा है क्योंकि ये जी अभी भी जो हम लोग समझ रहे हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे है। अभी भी वो चीजें हमारी अंदर तक नहीं गई हैं। अगर अंदर तक गई हो, जब अंदर तक चली जाएंगी जिया जी, तो वो हमारे कर्मों में दिखने लगेंगी। इसीलिए उन चीजों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सारे जन्मों में केवल शरीर और शरीर इंद्रिय से रिलेटेड काम ही बार बार किए हैं। तो जब उतना ही रिपीटिशन होगा तब जिया जी ये बातें अंदर तक जाएंगी। इसी वजह से श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथ में एक बात को इतनी इस तरह से घुमा फिरा के बार बार वही चीज बताई जा रही है, जिससे किसी तरह से हमारा ध्यान उस चीज में चला जाए जो यूनिवर्सल ट्रुथ परफेक्ट। है ना जी जी। बिल्कुल एकदम, जो तुमने पकड़ लिया है ये चीज, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने, क्योंकि वो जो है ना, उसको मिटाने के लिए जन्म जन्मांतर के जो मटेरियल थिंकिंग है हमारी, वो तो हमारे ऊपर कोई कृपा हो गई कि हम ये पढ़ रहे हैं। और हम्म। ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हारे को यहाँ तक समझ में आ गया है ये चीज, ये बहुत ज्यादा मटेरियल है। तो जीजा जी अब हम लोग की एक ड्यूटी है कि जो चीज सुपरफिशियल वे में समझ में आई है उसको अंदर तक ले जाए। क्योंकि दिया जी ये हम लोग इंटरनली जब अपने को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी भी हम लोग जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये इंटरनली जब एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अभी इसको अंदर तक ले जाने के लिए हम लोग को और एफर्ट्स करने हैं और अपने हम्म। एफर्ट्स में तेजी लानी है। भाई देखो, एक तो ये है प्रैक्टिस, और जी। दूसरी चीज ये भगवान की मर्सी के लिए प्रे करो, जो तुम्हें हाँ एक बार पहले कहा था तुमने, जी जी है जी। ना। ये हाँ दोनों चीजें जब होंगी ना, अहेतु की कृपा होगी, भगवान की मर्सी होगी, तो वी हैव टू प्रे फॉर दैट ऑल्सो, यस। है ना। ये जो है, बट ये है कि हम लोग कर रहे हैं, तो देखो अब ये जो है ना, ये समहाउ, ये भी जो भी हम लोग संपर्क में आए हैं, वो भी भगवान जी की कृपा जी बिल्कुल। है ना। जी सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृण्यते भगवान भगेन तेनैव मे दृश्मनुस्पर्शताद्यथाहम् स्त्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणत प्रियोऽसौ। जी। सोयम यम समस्त समस्त जगतां जगतां सुहृदेक आत्मा आत्मा तत्वीन सत्त्वेन यम यन्मृण्यते ब्रह्म यति भगवान् भगवान भगेन् भगवान तेनैव तेनैव मे मे दृश्य मनु दृश्यमनुस्पृश्यताद्यहं स्त्रक्ष्यामि पूर्ववदिं क्षामि प्रियोऽसौ। पूर्व दिदम प्रणता प्रियो सौ। Translation: Let the Supreme Lord be merciful towards me. He is the one friend and the soul of all living entities in the world, and he maintains all for their ultimate happiness. By his six transcendental opulences, may he be merciful towards me, so that I, as before, may be empowered with the introspection to create. For I am also one of the surrendered souls who are dear to the Lord. ब्रह्मा जी को देखो कितनी क्लैरिटी है, जो तुम कह रही हो ना, वो यही कर रहे हैं। हम्म। He is praying to the Supreme Lord and he has understood his position. और एक चीज ये जो बड़ा सेंटेंस है ना इसी ट्रांसलेशन में ही, है ना, let the supreme lord be merciful towards me, he is the one friend and soul of living entities in the world, and he maintains us all for
for their ultimate happiness by his six transcendental opulences. मतलब अदरवाइज भगवान क्यों मेंटेन करते हैं? आप अपने इतने इंडिपेंडेंट बने हो रहे हैं, एक तरह इन ए वे आप भगवान को डिफाई करके बाहर, है ना, आ रहे हैं, बट ये स्टिल ही। जी इस सेंटेंस का एक मतलब और है। देखिए, जब ये कह रहे हैं लेट द सुप्रीम लॉर्ड बी मर्सीफुल टुवर्ड्स मी, ठीक, तो यहाँ पे जी मैं समझ पा रही हूँ कि इसका मतलब ये है कि लेट द सुप्रीम लॉर्ड बी मर्सीफुल टुवर्ड्स मी। इसका क्या मतलब है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है वो हमारे प्रति मर्सीफुल कब होंगे? जब जीजा जी हम जो भक्ति करेंगे उसमें जब शुद्धता होगी, प्योरिटी होगी, तब। यहाँ पर तो मेरे ख्याल में ब्रह्मा जी हम्म। प्रे कर रहे हैं हमारे लिए, वो बात नहीं हो रही है। है। हाँ, अच्छा। ये यहाँ तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना भगवान हम्म, से, है ना। तो वो मतलब वी कैन, आई ओनली रिफ्लेक्टेड कि यहाँ पर ब्रह्मा जी एक बात बता रहे हैं कि भाई ही इज ही इज क्या नाम है, ही मेंटेन्स ऑल फॉर देयर अल्टीमेट हैप्पीनेस। जितनी भी सोल्स है हमारे तुम्हारे जैसी, उनको अच्छा। मेंटेन करते हैं बाय हिज सिक्स ओपुलेंसेस, है ओके। ना। तो हाँ। हमारा ये रिफ्लेक्शन था कि देखो भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि हम्म, डिस्पाइट आवर डिफाइंस, भाई तभी तो हम्म, हम लोग इतने सारी योनियों में हैं, असुर भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। भगवान हाँ, से बहुत से लोग एनमिटी भी रखते हैं। देर आर सो मेनी एथीस्ट्स ऑल्सो, बट वो सबके लिए वो जो है ना वो करुणामयी है। अच्छा। तो purport, the Supreme Lord Purushottam or Sri Krishna is the maintainer of all in both the transcendental and material worlds. He हम्म, is the life and friend of all because there is eternally natural affection and love between the living entities and the Lord. ये बड़ा important sentence है। हम्म, मतलब वो नहीं अपना लव खत्म करते हैं कभी भी, हम्म, नेवर। He is the one friend and well-wisher for all, and he is one without a second. The Lord maintains all the living entities everywhere by his six transcendental opulences, for which he is known as Bhagwan or the Supreme Personality of Godhead. Lord Brahma prayed for his mercy so that he might be able to create the universal affairs he did before. Only by the Lord's causeless mercy could he create both material and spiritual personalities like Marichi and Narad, respectively. Brahma prayed to the Lord because he is very much dear to the transcendental soul. The surrendered soul knows nothing but the Lord, and therefore the Lord is very affectionate towards him. यहाँ हम्म, पर इस परपोर्ट में एक जो है जो टीचिंग मुझे नजर आती है, हम्म, वो ये है कि भाई जैसे ब्रह्मा जी उनको एक काम सौंपा है, एक हम्म, काम सौंपा है कि तुम सृष्टि क्रिएट करो। बट वो काम सौंपा पाया है तो सृष्टि क्रिएट नहीं करने में तुरंत लग गए। ही हम्म, हैज फर्स्ट प्रेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। बिना उनकी प्रेयर और उनकी मर्सी के नहीं वो काम संपन्न ठीक से हो पाएगा। हम्म, वही चीज हम लोगों के लिए है कि भाई आपको भी क्या नाम है, प्रे करना चाहिए। इफ यू डिजायर, अगर हम भक्ति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान के लिए को हमें प्रे करना चाहिए। हम्म, ये वाला क्या नाम है, मेरे को यहाँ पे जो इन्होंने जी, परपोर्ट में ये लिखा है, इससे ऐसा हाँ, लगता हम्म, है ना। ये जी, बात है। हम्म। टेक्स्ट 23। जी मैं पढ़ूँ अब? पढ़ो पढ़ो। हम्म। ऐश प्रपन्न वरदो रमयात्म शक्त्या यद्यत् करिष्यति ग्रही गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विज्ञाम। एष प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्त्या यद्दत्त करिष्यति गृहीत गुणावतार तस्मिन् स्वविक्रमइदं सृजतोऽपि चेतो युज्यीत कर्मशलं च यथा विजह्याम। The Supreme Lord, huh. The Supreme Lord, the personality of Godhead, is always the benefactor of the surrendered soul.
His activities are always enacted through his internal potency, Rama, or the goddess of fortune. I pray only to engage in his service in the creation of the material world, and I pray that I not be materially affected by my work, for thus I may be able to give up the false prestige of being the creator. देखो अब यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने मतलब Hmm. अहंकार जो फॉल्स प्रेस्टीज जो हम लोगों का जो सबसे बड़ा, बार बार भगवान ने भगवत गीता में भी कहा है कि निरअहंकार, मतलब अहंकार को छोड़ने के लिए कहा है ना। यहाँ पर मतलब ब्रह्मा जी इज अवेयर कि उनके अंदर में अहंकार ना आ जाए, इसलिए वो प्रे कर रहे हैं, है ना। जी जी बड़ा जी। इम्पोर्टेंट। हाँ या अहंकार को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। हाँ 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 हाँ। मान लीजिए मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट हूँ, 100 आउट करेक्ट। ऑफ, है ना। और मेरे अंदर ये अहंकार अगर डेवलप हो गया कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, तो जी जी इसको अपने आप को इस तरह से समझाना चाहिए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, उसको ये घर परिवार मिले होते, माँ बाप मिले होते, तो वो व्यक्ति भी इसी तरह से परफॉर्म करता। तो इसमें मेरी कोई अलग से कोई विशेषता नहीं है। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर जिस व्यक्ति को अहंकार है किसी बात का, तो उसको कैसे समझाया जाए कि उसको ये समझ में आ जाए कि ये अहंकार गलत है। वो उसको समझने का एक दूसरा तरीका है, मतलब जी ये जो है ना, ये वाली थिंकिंग मुझे नहीं लगता है ठीक है। हाँ, मुझे ये तो ये लगता है ये हाँ। वाली थिंकिंग ज्यादा ठीक होगी कि हम्म भाई मैंने मतलब मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, जिसकी हम्म वजह से मेरे को ये सब एबिलिटीज मिली हैं। अच्छा। लेकिन मुझे वो एबिलिटीज का क्रिएटर मैं नहीं हूं, मुझे हाँ हाँ। भगवान की कृपा मिली है। तो वो हम्म अब जब आप जैसे ही आपने कहा कि नहीं ये तो मैंने क्रिएट किया, मी एंड माइन, हम्म I have studied hard, I was born into a great family, I got the great schooling and हम्म जिसकी वजह से मुझे मिला है, वो हम्म, अहंकार हो गया। बट अच्छा। जहां पर कि आप जब ये इस चीज का क्रेडिट भगवान को देते हैं ना, हम्म। तब वो क्या नाम है अहंकार नहीं होगा। यहाँ तो ब्रह्मा जी जो है ये जी। पहले से ही अवेयर हो गए हैं कि यार मेरे हम्म को ये काम दिया है और हम्म मेरे को एम्पावर किया है भगवान ने, हम्म तो मैं जब ये सब क्रिएट करूंगा ना तो मेरे अंदर इस बात का अहंकार हो जाएगा, जो तुम बाद की बात कर रही हो कि हमारे हम्म अंदर जो है कि मेरे को ये बड़ी ग्रेट एबिलिटी आ गई है मैथ्स की, और ये है वो है। तो अब जो है वो अहंकार जो है ना, वो आप कर्म वो अहंकार है। बट अगर हम्म, आप उसको भगवान की मर्सी मानते हैं, तब फिर वो अहंकार नहीं होगा, वो आपके एक्शंस में भी नहीं रिफ्लेक्ट होगा तब। अच्छा। हाँ, जब जैसे सपोज करिए आपके अंदर में अहंकार आ गया, तो फिर हम्म आप जो है ना वो मी एंड माइंड, तब यू विल स्टार्ट डिक्टेटिंग फॉल्स हम्म प्रेस्टीज में, फॉल्स क्रम ईगो में, क्रम फॉल्स ईगो तो तुरंत भगवान को डिनाई कर देता है ना। जी। फॉल्स ईगो की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो डिनाई करता है भगवान को, हाँ। है ना, वो अपने आप को समझने लग जाता है भगवान। अच्छा। ठीक। आई थिंक सो, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। है ना। वो ये बिल्कुल। वाला जो है एस्पेक्ट जो है वो बड़ा। जी। हम्म। In the matter of material creation, maintenance, and destruction, there are three incarnations of the material modes of nature: Brahma, Vishnu, and Maheshwara. But the Lord's incarnation as Vishnu, in his internal potency, is the supreme energy for the total activities. Brahma, who is only an assistant in the modes of creation, wanted to remain in this actual position as an instrument of the Lord, instead of becoming puffed up by the false prestige of thinking himself the creator. That is the way of becoming dear to the Supreme Lord and receiving his benediction. Foolish men want to take credit for all creations made by them, but the intelligent person know very well that not a blade of the grass can move without the will of the Lord. Thus, all the credit for wonderful creation must go to him. By spiritual consciousness only can one be free from contamination of material affection and receive the benedictions offered by the Lord. यहाँ तो पर तो सबसे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, क्या नाम है, पूरा जी उन्होंने लिख जी दिया है।
भाई यहाँ जी। पर ये देखो ना, ये बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो कम से कम भगवान के असिस्टेंट मान रहे हैं ना, भगवान के असिस्टेंट है। बट ऑर्डिनरी जो हमारे ऐसे लोग हैं, वो तो हम्म। वहां पे भी नहीं है ना, हम तो ऑर्डिनरी पीपल है। तो हम्म। वो उनके अंदर में क्या नाम है, ये वाला भावना जो है कि मैंने क्रिएट किया है, मैंने किया है ये हाँ। सब, वो तो बिल्कुल ही गलत है। जी। क्योंकि दैट इज वाई द मोर यू प्रे कि नहीं भैया मेरी वजह से नहीं है, भगवान की वजह से। और ये हम्म। सब यहाँ पर चूंकि आई एम जस्ट एट इफ एट ऑल केयर टेकर ऑफ दिस मटीरियल पोजेशंस विच इज नॉट माइन, जी। या इवन जो मेरी मेंटल फैकल्टीज भी हैं वो भी भगवान की दी हुई हैं। हम्म। जी। यहाँ पर जो है ना, ये बड़ा चीज अच्छी बताई है कि ब्रह्मा जी की तो बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन है ना, बिकॉज ही इज ए डेजिग्नेटेड असिस्टेंट हम्म। बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हम तो नहीं है ना, हम्म। तब जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो तो नहीं है। हम्म। बट जब ब्रह्मा जी तक जो है ना, ही इज प्रेइंग कि भैया मेरे को कर्म है, जरा बचा के रखना, हाँ। क्योंकि मैं भी तो हूं इसी मटेरियल वर्ल्ड में ना, बिल्कुल। मैं भी तो बर्बाद हो सकता हूँ। तो इसलिए वो भगवान उसे से प्रे कर रहे हैं, ऐसे ही हमें करना चाहिए। जी। 24। नाभि हृदा हृदादि ततो भसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रह मास अ, मासम नंत शक्तेः रूपम विचित्र विचित्रमि दमस्य विव्रणवतो मे मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसर्गा। नाभिः ददादिः सतोम भी से यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति रहमा समन्त शक्ते रूपम विचित्र मिदमस्य विवृणवतो मे मारीरिष्ठ निगमस्य गिराम विसर्ग। Hmm. The Lord's potencies are innumerable. As he lies down in the water of devastation, I am born as the total universal energy from the navel lake in which the lotus sprouts. I am now engaged in manifesting his diverse energies in the form of cosmic manifestation. I therefore pray that in the course of my material activities, I may not be deviated from the vibration of the Vedic hymns. अगेन इज प्रेइंग कि भाई जो वैदिक हिम्स तो उन्हीं के वो है ना, भगवान के ही इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे बिल्कुल। इधर उधर ना हो पाऊं। जी। Every person engaged in the transcendental loving service of the Lord in this material world is prone to so many material activities. And if one is not strong enough to protect himself against the onslaught of material affection, he may be diverted from the spiritual energy. In the material creation, Brahma has to create all kinds of living entities with bodies suitable to their material conditions. Brahma wants to be protected by the Lord because he has to contact many vicious living entities. An ordinary Brahma may fall from the Brahma Tejas or the power of Brahminical excellence due to his association with many fallen conditioned souls. Brahma, as the supermost Brahman, is afraid. ब्राह्मण ब्राह्मण, हाँ। Brahman, acha. uh, Brahman is afraid of such a fall down, and therefore he prays to the Lord for protection. This is warning for one and all in the spiritual advancement of life. Unless one is sufficiently protected by the Lord, he may fall down from his spiritual position. Therefore, one has to pray constantly to the Lord for protection and blessing to carry out one's duty. यहाँ पर Lord, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आ गई है, क्या नाम है कि इवन अगर आपको भक्ति में भी कंटिन्यू करने के लिए भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, अदरवाइज आप छोड़ बैठोगे बीच में। बिल्कुल तो है ही है। बिल्कुल। Lord Chaitanya also entrusted his mission work to his devotees and assured them of his protection onslaught against the अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ। of material affection. The path of spiritual life is stated in the Vedas to be like the edge of a sharpened razor. A little attentiveness may at once create havoc and bloodshed.
but one who is completely surrendered soul, always seeking protection from the Lord in the discharge of his entrusted duties, has no fear of falling into material contamination. ये हम्म तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि a little inattentiveness may हम्म at once create havoc and bloodshed, but one who is completely surrendered soul, always seeking protection from the Lord in the discharge of his entrusted duties, has no fear of falling into material contamination. बहुत ज्यादा जिया जी अलर्ट रहने की जरूरत है, नहीं तो हम कब फिर उसी जगह गिर जाएंगे जहां से हम उठ के आए हैं। ये बहुत अलर्टनेस की जरूरत है। हाँ हाँ, ये बात जो है ना, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट, एक तो ब्रह्मा जी से यहाँ पे इनमें कंपैरिजन में ये लगता है जैसे ब्रह्मा जी को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस वो हम्म, एनविसाज कर लिया था उन्होंने, हम्म, और उससे प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भगवान को प्रे कर दिया। यही हमको हाँ, भी ये कंटिन्यूअसली करते रहना, अदरवाइज तो आप क्या नाम है, क्योंकि सेंसेस और सेंस ऑब्जेक्ट कहीं चले तो जाएंगे नहीं, आप तो हैं तो हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में ही, तो बिल्कुल। आप कभी भी फॉल डाउन कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेन अलर्ट, जो ये तुम कह रही हो। बिल्कुल। सो सो सा सो सावध अभ्र करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बु रूहम विजृंभम विजृंभन उत्थाय विश्व विजयाय च नु विषादम माधव्या गिराप गिराप नय तात पुरुषः पुराणः। सो सावध भ्रक करुणो भगवान विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहम वृज्य ब्रह्मन भमन उत्थाय विश्व विजयाय च नो विषादम माधव्या गिरा पनयता पुरुषः पुराणः। Translation. The Lord, who is supreme and is the oldest of all, is unlimitedly merciful. I wish that he may smilingly bestow his benediction upon me by opening his lotus eyes. He can uplift the entire cosmic creation and remove our dejection by kindly speaking his directions. Purport. The Lord is ever increasingly merciful upon the fallen souls of this material world. The whole cosmic manifestation is a chance for all to improve themselves in devotional service to the Lord, and everyone is meant for that purpose. The Lord expands himself into many personalities who are either self-expansions or separated expansions. The personalities of the individual souls are his separated expansions, whereas the self-expansions are the Lord himself. The self-expansions are predominators, and the separated expansions are predominated for reciprocation of the transcendental bliss with the supreme form of bliss and knowledge. The liberated soul can join in this blissful reciprocation of predominator and predominated without materially concocted ideas. The typical example of such a transcendental exchange between the predominator and the predominated is the Lord's Ras Leela with the Gopis. The Gopis are predominated expansion of the internal potency, and therefore the Lord's participation in the Ras Leela dance is never to be considered like the mundane relationship of man and woman. It is rather the highest perfectional stage of the exchange of feelings between the Lord and the living entities. The Lord gives the fallen soul the chance for this greatest perfection of life. Lord Brahma is interested with the management of the complete cosmic show, and therefore he prays that the Lord bestow his blessing upon him so that he may execute its purpose. यहाँ पर ये जो है ना, प्रीडोमिनेटर एंड प्रीडोमिनेटेड, Hmm. ये बड़ा अच्छे से समझ लेना चाहिए। Hmm. तभी आप अपने फॉल्स ईगो पे और बाकी चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। जब Hmm. आप ये समझ लोगे कि आप प्रीडोमिनेटेड हैं, एंड सुप्रीम लॉर्ड इज द एंड हिज सेल्फ एक्सपेंशंस आर प्रीडोमिनेटर्स, क्या नाम है,
तब आप जो है ना, आप भक्ति कर सकते हैं, और तब आप एक उनसे रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है, भगवान की मर्जी अगर होगी आपके ऊपर। बिल्कुल। ये चीज आपको हमेशा हर समय याद रखनी पड़ेगी। हम्म। प्रीडोमिनेटर एंड प्रीडोमिनेटर, दैट वही वाली चीज जो है, वी आर द एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये हम्म। चीज जो है ना, ये अब ये हमने थ्योरी में हम तो सुन सुन के सुन तो गए हैं, लेकिन अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा वो तपस्या ही है, वो है ना। मैं पढ़ता हूँ है। जी। टेक्स्ट 26, मैत्रेय उवाच, स्वसंभवम निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्। जी। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशा निशाम्येवं एवं तपो तपो विद्या विद्या समाधिभिः यावन् यावन् वन्मनोवचः मनोवता स्तुत्वा स्तुत्वा विराम विरराम स खिन्नवत्। The sage Maitreya said, O Vidur, after observing the source of his appearance, namely the personality of Godhead, Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus, having prayed, he became silent, as if tired from his activities of penance, knowledge, and mental concentration. वहां तक किया जब तक वो बिल्कुल थक नहीं गए भगवान की प्रेयर करने। हैं, हम्म। है ना, ये बात है। हम्म। Brahma's enlightenment in knowledge was due to the Lord sitting within his heart. After being created, Brahma could not ascertain the source of his appearance. But after penance and mental concentration, he could see the source of his birth, and thus he became enlightened through his heart. The spiritual master outside and spiritual master within are both representations of the Lord. Unless one has contact with such a bona fide representation, one cannot claim to be a spiritual master. Lord Brahma had no opportunity to take the help of a spiritual master from outside, because at that time Brahma himself was the only creature in the universe. Therefore, on becoming satisfied by the prayer of Brahma, Lord enlightened him about everything from within. The ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर और पेनांसेस से भगवान को अपना गुरु बना लिया। हम्म। बिल्कुल। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, और मैत्रेय जी का तो ये कहना है कि वो इतना इस हद तक उन्होंने भगवान की वो किया प्रेयर जब तक वो थक नहीं गए। हम्म। टेक्स्ट 27-28, हम्म। अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदन विषण्ण चेतसम तेन कल्प व्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलम शमयन्निव। जी। अथापि प्रेत मनवीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः मधुसूदन विषण विषण चेतसं चेतसम तेन तेन कल्प कल्प व्यतिक्राम्भसा लोक व्यतिराम सा लोक लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः समाह तमाहागाधया वाचा बलम कश्मलम शम्यन्निव। शमय निम। जी। The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of different planetary systems, and was depressed upon seeing the devastating water. He could understand the intention of the Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusions that had arisen. ये देखो यार, ये जरा दोबारा पढ़ देता हूँ। अब क्या है ना कि ब्रह्मा जी को भगवान समझ गए, मतलब भगवान तो समझते ही हर एक को, उनको पता चल गया ब्रह्मा की परेशानियां क्या है।
हम्म, है, काम तो मैंने इनको दिया है, लेकिन इनकी परेशानी क्या है? भगवान उन सबके हृदय में बैठे हैं, ब्रह्मा जी के भी। द लॉर्ड सॉ दैट द ब्रह्मा वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स एंड वॉज डिप्रेस्ड अपॉन सीइंग द डिवास्टेटिंग वाटर्स। ये हम लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है, आप देखो ना। हम कभी भी कोई काम लेते हैं तो हमारे अंदर में भी अनसर्टेनिटी, एंग्जाइटी, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये आती है। ये इट इज ब्रह्मा जी के अंदर में भी वही वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और चूंकि अब उन्होंने इतनी प्रेयर करी है भगवान की कि अब भगवान जो है वो मतलब अपनी निद्रा से जग रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यार ये तो बंदा जो है ना, ये इज कम्प्लीटली सरेंडर एंड लेट मी। मुझे तो पता ही है ये क्यों क्यों परेशान हो रहा है। He could हम्म, understand the intention of Brahma, and thus he spoke in deep, thoughtful words, removing all the illusions that had arisen. अब भगवान ने उस सबसे महती कृपा की, परपोर्ट। हम्म, The devastating water was so fearful that even Brahma was perturbed at its appearance and became very anxious about how to situate the different planetary systems in outer space to accommodate the different kinds of living entities, such as the human beings, those lower than the human beings, and the superhuman beings. All the planets in the universe are situated according to different grades of living entities under the influence of the modes of material nature. There are three modes of material nature, and which they are mixed with one another, they become nine. When the nine are mixed, they become 81, and the 81 also become mixed, and thus we ultimately do not know how many delusion increases and increases. हम्म, Lord Brahma had to accommodate different places and situations for the requisite bodies for the conditioned souls. The task was meant only for Brahma, and no one in the universe can even understand how difficult it was. But by the grace of the Lord, Brahma was able to execute the tremendous task so perfectly that everyone is amazed to see the workmanship of Vidhata or the regulator. हम्म, अब देखो क्या नाम है, यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग बात ले आए हैं हम्म, कि ब्रह्मा जी खासे परेशान हैं और डिवास्टेशन वर्ड, और उनको काम इतना बड़ा दिया है। अब उनके समझ में नहीं आ रहा, अब देखो भगवान क्या करेंगे ताकि वो ब्रह्मा का काम फैसिलिटेटेड होगा। वो बता ही दिया उन्होंने, तीन हम्म, गुण है, 3 से 9 बन जाते हैं, 9 से 81 बन जाते हैं, फिर 81 × 81 हो जाते हैं। इतने सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ गुण हैं। उनके हिसाब से बॉडीज क्रिएट करनी है, 84 लाख, एक एक यूनिवर्स में, एक खाली यूनिवर्स में हमारे, हम्म, मतलब उसमें। तो समझ लो कि यूनिवर्स में जाने कितने प्लैनेट्स हैं, उनकी कितनी टाइप की बॉडीज हैं, इंक्लूडिंग द बॉडीज विच आर सुटेबल फॉर सन सन प्लैनेट, हम्म, है ना। तो जी, भगवान ने कितना डिफिकल्ट काम उनको दिया, वो हम्म, राइटफुली परेशान है। लेकिन चूंकि उन्होंने प्रे किया तो देखो भगवान क्या करते हैं। हम्म, अब देखो भगवान ने बोले हैं, अब टेक्स्ट 29, श्री भगवान वाच, हम्म, माँ वेद गर्भ गास्त्रंद्रीम सर्ग उद्यमवाह तन्माया पादितम ह्यग्रे यन्माम प्रार्थयते भवान। हाँ, श्री भगवान उवाच अच्छा, माँ वेद माँ गर्भ वेद गर्भ गात्रंगरी गास्त्रंद्रीम सर्ग सर्ग उद्यम उद्यममावा तन्मया तन्मया पादितम पादितम ह्यग्रे यज्ञ यन्माम जन्माम प्रार्थयते भवान। भवान। Hmm. Hmm. The Supreme Personality of Godhead then said, O Brahma, O depth of Vedic wisdom, be neither depressed nor anxious about the execution of creation. What you are begging from me has already been granted before. भगवान कह रहे हैं कि सब मैं कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो, तुम तो खाली निमित्त हो, है ना, परेशान मत हो। परपोर्ट एनी निमित्त पर्सन की है। यदि अगर निमित्त की बात सोची जाए तो मैं एक छोटी सी बात ये सोचती हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लोग मनुष्य के तौर पे पैदा हुए हैं, है ना जी? हम कैसे किसी के गर्भ में आए, हम कैसे बढ़े, उसमें हमारा क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है, ओके, यस। है ना? है ना जी? तो नहीं, मतलब जी, योगदान तो है,
यू सी, कैसे? क्योंकि पास्ट कर्मा की वजह से ही आपको एक पर्टिकुलर गर्भ दिया गया है, आपको हम्म एक पर्टिकुलर योनि दी गई है। हम्म ये आपके पास्ट कर्मा की वजह से है, ऐसे नहीं है। जस्ट लाइक दैट, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। वो तो वही तो मायावाद फिलॉसफी है और हाँ। नेचुरल वो है ना ना ना। हम्म, आई डोंट थिंक, नो, नहीं नहीं, बिल्कुल है ही नहीं ऐसा। जी। भगवान जो है वो जो है ना, मतलब ये आपको जो जन्म मिला है ना जैसे उस परिवार में, और हम्म उसी चीज को तो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, बट वो है क्या नाम है, मतलब आपके पुराने जन्मों का कर्म का फल है, तभी आपको ये जन्म मिला है। और ये नहीं जी, बार बार ये ये नहीं कह रहे हैं। हम्म ये तो हम जानते हैं। ये तो हम ये जो बात आपने कही इससे हम अग्री करते हैं कि भाई देखिए, जैसे हमारे कर्म थे उस हिसाब से हमें परिवार मिला, उस हिसाब से हमें परिस्थितियां मिली। ओके। मेरा कहने ओके, का मैंने हो मेरा सकता है गलत समझा हो तुम्हारी बात, हाँ। नहीं नहीं जी, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हमारा जो उसमें कोई योगदान नहीं है, ये जो तुमने कहा ना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं नहीं ये जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी के गर्भ में आए, हम हमारा जो शरीर बना, है ना, उस प्रोसेस में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली हुई है ना, शरीर का बनना, सांस का लेना, पाचन तंत्र का काम करना, बुद्धि सब का काम। भगवान है, सब सबके अंदर भगवान है, वो ऐसे नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली कुछ मेरा भी कहने का नहीं हो मतलब रहा है है। कि एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैं ये सोचूं ऑफ कि कोर्स इसको कह रहा मैं, आपका आपका उसमें कुछ नहीं है, लेकिन यही कह सारा रही है कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। यही यही कह रही है जी, हाँ, ये चीज तो कि हाँ, ये यस। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, खाना पचता है, एनर्जी सब आती है। वही तो भगवत गीता में यही तो समझाएंगे सब वो, जी हाँ, कि जी भाई जी। वो सब भगवान है उसके अंदर में, पाचन क्रिया में भी, जठराग्नि में भी, जो हम्म आपके पेट में जो आग है जिसकी वजह से खाना पच जाता है, सब हम्म आई एम द जठराग्नि, हाँ, ये कह रही हैं जी। कहेंगे भगवान, है ना। जी। वो तुम्हारी हम्म बात सही है बिल्कुल। लेकिन वो इवन जो आपके पास कर्मा भी अगर बहुत ही डीपर लेवल पे सोचें, वो हम्म भी आपके कर्मों की वजह से ही हाँ बिल्कुल। है कि नहीं। वो भी हाँ आपको क्या नाम है, मतलब आपका कहीं ना कहीं एवोल्यूशन होता है जिसकी वजह से आप प्रे करते हैं टू द सुप्रीम हाँ लॉर्ड, तो आपको फिर ये वाला बॉडी मिलती है, ऐसा हाँ गर्भ मिलता है, ऐसा घर परिवार मिलता जी बिल्कुल। है ना। मेरे को हाँ, मतलब ये, यस, है ना। जी ये जी। परपोर्ट पढ़ो, ये इंटरेस्टिंग होगा, देखो क्या हाँ कहते हैं। Any person authorized by either the Lord or by his bona fide representative is already blessed, as is the work entrusted to him. Of course, the person entrusted with such a responsibility should always be aware of his incapability and must always look for the mercy of the Lord for the successful execution of his duty. One should not be puffed up because he is entrusted with certain executive work. Fortunate is he who is so entrusted and is always fixed in the sense of being subordinate to the will of the Supreme. He is sure to come out successful in the discharge of his work. Arjun was entrusted with the work of fighting on the battlefield of Kurukshetra. And before he was so entrusted, the Lord had already arranged for his victory. But Arjun was always conscious of his position as subordinate to the Lord, and thus he accepted him as the supreme guide in his responsibility. Anyone who takes pride in doing responsible work but does not give credit to the Supreme Lord is certainly falsely proud and cannot execute anything nicely. Brahma and persons in the line of disciplic succession who follow in his footsteps are always successful in discharge of loving transcendental service to the Supreme Lord. यहाँ पर ये पूरा परपोर्ट जो है ना, ये बड़ा पावरफुल है। आप देखें तो यहाँ पर एक्चुअली तो प्रभुपाद जी ने ना जो इस्कॉन बनाया है उसकी प्रोसेस को बता दिया है। दैट कैन व्हाई हाउ ही कुड क्रिएट। वो अर्जुन, अर्जुन को भी देखो ना, अर्जुन वॉज empowered by the Supreme Lord because he was a devotee. He was a devotee. He never became puffed up कि मैं हूं सब कुछ मैंने। वो यहीं पे यही कह रहे हैं कि आपको भी अगर कोई काम दिया है और वो काम जो है तो वो आपके अपने बस उस पर नहीं हो सकता। यू मस्ट ऑलवेज प्रे टू द लॉर्ड, और फिर आप सक्सेसफुल होगे, फिर उसमें कोई भी जरा भी डाउट नहीं है कि आप सक्सेस। यही वो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये अपनी
कहानी बता रहे हैं कि इनको इनके गुरु महाराज ने, दैट मीन्स भगवान ने इनको कहा कि भाई तुम सारी दुनिया में जाकर के कृष्ण कृष्ण को कर्म कृष्ण को एस्टेब्लिश करो, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति को एस्टेब्लिश करो। तो देन ही केम विद ओनली $7 इन हिज पॉकेट एंड कर्म स्टेप्ड ऑन। अमेरिका में मतलब बहुत सारा पैसा होने पे भी आप जब उतरते हैं ना अमेरिकन सॉइल पे, अकेले बाहर खड़े हो तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है यहाँ, हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस वर्ड, आपको समझ नहीं आएगा। लेफ्ट तुरंत तो एक तो डायरेक्शन ही चेंज होगा, राइट आपको पता ही नहीं है रोड कैसे क्रॉस करें। और वो आदमी जो है वहां पे जा करके उसने क्या नाम है $7 इन हिज पॉकेट, ही एस्टेब्लिश कृष्णा not only in that but 107 temples across the world within them। तो that is what he is saying and that too when he stepped मतलब बाहर आए हैं, 2 हार्ट अटैक उनको ऑलरेडी हो चुके थे भाई, he had suffered 2 हार्ट अटैक्स। शिप की जर्नी 21 डेज की शिप जर्नी भाई, वो इन ए कार्गो शिप, नो मीन फीट। हमारी साली मायापुर जाने में हवाई जहाज से जाने में परेशानी हो रही है यार, वहां पता नहीं क्या होगा, इतना वहां पे मैं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, मेरी वाइफ जा रही है मेरे साथ तो कैसे होएगा, बिल्कुल। रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पे तो खाली चावल मिलता है तो कैसे करेंगी, और पता नहीं क्या क्या, मतलब व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गेट इनटू माय हेड। यू सी, हम्म। कुंभ जा रहे हैं तो भी कर्म परेशान हो रहे हैं यार, क्या पता है साला इतना स्टैम्पीड हो गई थी, मर मरा गए लोग, है ना, समझ रही हो ना। बिल्कुल। लेकिन लेकिन यहीं पर जो है ना ये बहुत बड़ी ये परपोर्ट को इसको फ्लैग कर लो, इसको पढ़ना जब भी क्या नाम है ये जो परपोर्ट मेरे को तो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। हम्म। और फॉर क्या नाम है मतलब कि जैसा तुम कहती हो ना बार बार कि हम्म। नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम्म। विच इज ट्रू, हम्म। actually it is true, हम्म। nothing is impossible, nothing is difficult, हम्म। there is nothing you cannot do। बट वहीं पर जो है ना पफ्ड अप नहीं है बंदा, हम्म। पफ्ड अप नहीं है उसके अंदर में, फॉल्स प्राइड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ वो हमारा सबसे, मेरा तो है ही है भाई, मैं आई डोंट नो अबाउट यू, बट क्या नाम है मतलब मेरा तो ये फॉल्स प्राइड, मी एंड माई ममत्व वाला जो हिसाब किताब है ना, इसी वजह से आपके अंदर में फियर आता है, हम्म। बिकॉज यू डोंट वांट टू लीव दिस वर्ल्ड, हम्म। है ना, बिल्कुल। है, हम्म। यू डोंट वांट, यू वांट टू क्लिंग दिस टू दिस हम्म। शरीर, हम्म। है, कहते तो हैं बात तो कर रहे हैं, हम्म। समझ रही हो ना, बिल्कुल। लेकिन हम क्लिंग करना चाह रहे हैं। ये जो एक, चीज आपको हाँ बताए, हाँ जैसे आपने कहा कि हम कुंभ कुंभ जा रहे हैं और उसको जाने से पहले इतना मन में आ रहा है कि वहां पे किस तरह से रहना होगा, किस तरह से खाना होगा। अभी यही चीज जब चीजें भक्ति में बढ़ जाएंगी आगे, तो ये सब कुछ नहीं लगेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हो। हम्म। और देखो क्योंकि ये भगवान हमें ठेल करके ले जाएंगे वहां तक, ले मुझे तो जाएंगे। बिल्कुल यही लगता है, जी। वहां तक ले जाएंगे, वो मायापुर भी ले जाएंगे, ठेल ठेल के ले जाएंगे, जी। धीरे धीरे, मतलब वो कहेंगे साले तुम मतलब कर रहे हो तो तुम करो फिर आप ये, हम्म। है ना, डोंट जी। वरी। जी, क्योंकि जिया जी हमने अपनी लाइफ में एक दो काम ऐसे किए हैं जिनको करने की मेरी प्रबल इच्छा थी, लेकिन मेरे पास संसाधन बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जीजा जी वो इच्छा इतनी ज्यादा प्रबल थी कि उसकी कठिनाइयां मुझे महसूस ही नहीं हुई। मेरे दिमाग में ये आया ये तो मुझे करना ही है। तो ये जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं एमसीए कर रही थी तो मैंने एमसीए इग्नू से करा था। तो फिर ये जी मैं सुबह 8 या 9 बजे निकल जाती थी और रात को मैं 10 बजे तक घर आती थी, क्योंकि मैं जॉब के साथ मैंने एमसीए किया है। तो मैं आपको बस एक सिंपल सी बात ये बता रही हूँ जिया जी कि इसी तरह से मैं अपने आप को, और जिया जी जो मैंने आपसे ये कहा ना कि मैं सेल्फ से ये कहती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि जिया जी हम जैसी बातें अपने आप को बोलेंगे उसी डायरेक्शन में उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम अपने से वीक बातें बोलेंगे तो हम स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे। तो हाँ हाँ। ये जी जब मैंने एमसीए किया तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरी इतनी प्रबल इच्छा थी एमसीए करने की जय जी कि मैंने जॉब के साथ मैं 9 to 5 जॉब करती थी, 6 to 8:30 क्लास करती थी यूपी टेक में, और 8:30 मैं पॉलिटेक्निक से घर आती थी रात को 10 बजे तक। वो लखनऊ से।
हाँ, लखनऊ से। जी जी, ये मैंने लगभग 1.5 2 साल किया है। तो अब वही उसी चीज में अगर आप जो है ना, मतलब सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड ले आओगे ना, तब आपकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं जी जी, और मैं ईश्वर से ये कहती रहती थी हाँ कि ईश्वर हाँ, हेल्प करिएगा, तो जीजा जी बस बस तो बस हो बस, गए। तो अब की चीज तो आप बताइए ना। जी जो जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, दैट जी यू आर ऑलरेडी सरेंडर्ड, यू जी। केप्ट ऑन प्रेइंग ऑन द डेली हम्म, बेसिस। हाँ यही चीज जो है ना, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। हाँ। और तो जी, सक्सेस, हाँ, यस। अगर हमारे अंदर, अगर आप श्रद्धा आपके अंदर है और भगवान से आप प्रार्थना करते रहें, तो वो चीज फिर हो जाती है जी जी। बिल्कुल, यस, आई एग्री कंप्लीटली, आई फुल्ली एंड कंप्लीटली एग्री। तो जी दिस जी। दिस वाज ए वेरी गुड कर्म है श्लोक, है ना। हम्म तो ये, अब ब्रह्मा जी जो है ना, भगवान से हम्म डायलॉग हो रहा है भाई अब। हम्म और वो क्या नाम है, उन्होंने, ये भगवान से डायलॉग हो रहा है, वेरी नाइस। आज हम्म। 14 तारीख है, ठीक है। जी ठीक है, फिर अब शाम को पढ़ेंगे, हैं। जी जी, बिल्कुल। ओके। जी। आज का हम्म काफी अच्छा था, हम्म है। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।